The story is moving at a very fast pace, and let me quickly explain to our viewers the visuals we are staying with on our screens. These are live visuals. Remember, the story is moving fast. All of that on live camera. Mamata Banerjee, who is at the IPAC office. Now remember, raids that are also being conducted at the IPAC office by these ED officials, who are of course checking for financial irregularities when it comes to Pratik Jain. कमिश्नरेट उसके जो कमिश्नर हैं वो यहां पर भीतर घुसे हैं और टीएमसी की एक महिला नेत्री जो मेयर हैं कृष्णा चक्रवर्ती वो यहां पर थी, लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल यहां पर अकेले ही घुसी हैं। ये पीछे का रास्ता है जो आईपैक के दफ्तर होता है और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुकी हैं जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। सुबह से दो जगहों पर, एक प्रतीक जैन के ऑफिस जो आईपैक के हेड हैं और जो आईपैक का दफ्तर है, ये वही दफ्तर है जहां से पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति टीएमसी के साथ मिलकर आईपैक तय कर रही है। इसी ऑफिस में रेड चल रही है और ममता बनर्जी इस वक्त यहां पहुंची है। All right, so there you see how the story has taken a very interesting turn, because Mamata Banerjee is primarily alleging that the ED is being misused by the centre, and this is access to very important information of the party, primarily files that entail details of what the party's strategy is in the upcoming polls in West Bengal. This is where TMC says that they are putting a stop to what the ED is up to. But here ED officials doing their work when it comes to Pratik Jain, when it comes to the charges जो of कोल स्कैम हो रहा है उससे रिलेटेड ये रेड हो, लेकिन अभी तक ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस छापामारी की कोई वजह नहीं बताई गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड बहुत फ्रीक्वेंट है, लगातार होती रह रही हैं और ऐसे में ये रेड सुबह से हो रही थी, लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पहुंचेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया, खासतौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह पर, कि जो पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो पार्टी के नेताओं को चुनाव में खड़ा करने की योजना है, इन सब योजनाओं को जानने के लिए ही ये रेड की गई है। ये बड़ा आरोप इस वक्त टीएमसी की ओर से लगाया जा रहा है। तो यहां पर दो प्रतिक्रियाएं सामने आनी जरूरी हैं। एक ईडी की, ईडी ने आखिर किस लिए ये रेड की है, और ये जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है ईडी को भी उस पर खुलकर सामने आना चाहिए, बीजेपी को भी उस पर खुलकर सामने आना चाहिए। तो दो प्रतिक्रियाएं अभी मिलनी बाकी हैं। And there you see how many answers that need to come in, because this is Mamata Banerjee who is alleging that the ED is not there for their rightful job. They are there to interfere in important documents that belong to the party, and that is what they are there to recover. Now the important question to be asked: can a sitting chief minister interfere in the work of the Central Investigative Agency? Can they possibly block an ongoing raid or even try and get documents at a time when the raid is underway? वहां से निकल गई, रेड चल रही है और यहां पर भी रेड फिलहाल चल रही है। ये देखिए, ये भीतर आप देख सकते हैं क्या स्थिति परिस्थिति है, हालात है, पुलिस है, मीडिया है, ममता बनर्जी भीतर हैं, ईडी के अधिकारी भीतर हैं और फिलहाल इंतजार है सबको जवाबों का। Dramatic visuals coming in, all of this unfolding on live camera. There you see at the IPAC office, where technically the Enforcement Directorate officials are conducting a raid. This primarily to look into charges of financial irregularity against Pratik Jain. Who is Pratik Jain? He is the head of IPAC, a very important man when it comes to how the TMC is strategizing for the upcoming polls in West Bengal. While the ED there to make recoveries, to gather important documents, evidence that can possibly support what these financial irregularities are that have allegedly been committed by Pratik Jain, Mamata Banerjee, who has obstructed to what is happening right now. She reached at Pratik Jain's residence, she reached at IPAC's office where these raids are underway. In fact, at Pratik Jain's residence where these raids were happening, she walked out with this green file. मीडिया के ज्यादातर लोग बाहर हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इस दफ्तर में, इस बिल्डिंग में मीडिया के कई ऑफिसर्स भी हैं,
तो संभवतः कुछ मीडिया ऊपर भी है और ऐसे में गहमा गहमी यहाँ पर बरकरार है। पुलिस की भारी संख्या में यहाँ तैनाती हम देख रहे हैं। यहाँ पर बाहर की ओर काफी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। टीएमसी की जो मेयर हैं यहाँ पर वो उपस्थित हैं और जो ऑफिस है, ऑफिस के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहाँ आने का निर्णय अचानक से लिया। ये देखिए ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये फाइल ले जाई जा रही है यहाँ से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, क्योंकि इस फाइल को लेके छीना झपटी हो रही है और ये फाइल फिलहाल गाड़ी में रखी जा रही है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आने के बाद यहां पर पुलिस के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ममता बनर्जी के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ये फाइल देखिए, ये कुछ पन्ने यहां पर गिर गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है ये पन्ने आप देख सकते हैं। ये देखिए ये फाइल बिल्कुल ममता बनर्जी के कॉन्वॉय की गाड़ी है जिसमें ये फाइलें डाली जा रही हैं। ये फाइलें निकाल ली गई हैं। ये फाइलें लेकर इस वक्त यहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गाड़ी में डाल चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि हरे रंग की फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली थी जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुई थी, और यहां पर कई सारी फाइल्स, कई मोटे दस्तावेज यहां पर लेकर उनकी गाड़ी का जो कॉन्वॉय है वहां पर पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देख लीजिए, यही वो गाड़ी है जहां पर फिलहाल वो फाइलें रखी हुई हैं और फाइलों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। यहां पर कई सारी फाइलें हैं और ममता बनर्जी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि चुनावी रणनीति, चुनाव के दौरान जो जिस तरह से टीएमसी काम And this car that ends with the number plate 5555 belongs to the party, belongs to the TMC. As our reporter continuing to get us details from the IPAC office. आपको बता दूं, कोई ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी उनके कॉन्वॉय से अलावा है, लेकिन इस गाड़ी में भी ममता बनर्जी अक्सर बैठती हैं और आज इसी गाड़ी में ममता बनर्जी आई हैं, तो इसी गाड़ी से ममता बनर्जी जाएंगी ये भी लगभग पक्का है, तय है। और फिलहाल वो फाइलें अगर मैं दिखा सकूं आपको, देखिए फाइल भी जी। देखिए, ममता बनर्जी के अगर हम बयान को सुने तो उनके बयान से साफ है कि वो जो आरोप लगा रही हैं कि ईडी की ये जो छापेमारी हो रही है, ये तृणमूल कांग्रेस की, आईपैक की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए जो बनाई गई फाइलें हैं, जो कैंडिडेट लिस्ट है, किस किस को दे सकते हैं चुनाव में टिकट, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, वो सारी की सारी जानकारियां इन देखिए वो फाइल में ही, बिल्कुल फाइल ही दिखाया जा रहा है। देखिए फाइलें जो रखी हुई हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फाइल हैं और काफी ऐसी फाइलें हैं जो बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या फाइल थी, लेकिन सरकारी फाइलें हैं। और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि यहाँ पर ईडी की ओर से बीजेपी के साथ खासतौर पर अमित शाह की शह पर पार्टी की रणनीति को हासिल करने की कोशिश है। और पहले बार जब घर में पहुंची तब भी एक फाइल उन्होंने ली और यहां पर कई सारी फाइलें लेकर फिलहाल वो गाड़ी में, जो उनकी गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो आई हैं, उस गाड़ी में रखा जा चुका है।